سلام پٹی چالیں وشے برابر پٹی درخواست پلیز یہ ویڈیو لاسٹ تک بچارے یہ شمار بعض انفارمیشن ہے شمار نظان ہے شمار ٹی وی تا دیتے ہیں شمار ریئل گندے منی گوما انشاءاللہ اور پلیز ویڈیو لاسٹ تک بچارے ویڈیو تو خوشی کن لیل تو قدر چون بھی تھا اور نمرے مسجد کو جامی اج چون بھی اج طریقہ چیاں بعض انفارمیشن ہے میشہ مسلمان واسطہ ماشاء نظان تھے پلیز درخواست ویڈیو لاسٹ تک بچارے 3 ریال 5 ریال یس اوکے 5 ریال دن ہے جسے حاجیوں کا شہر کہا جاتا ہے جسے حاجی لوگ ادا کرتے ہیں بڑی پیاری آپ سے ایک وادی السلام علیکم پارٹی چالیں وشے برابر ہے ٹھیٹھے ہر جگہ وشگل شادن باتیں پارٹی میں بس اتکا ہمارا ہو گئی ماشاء اللہ یک روکی جا گئی بارے ہمارا کجا بھر گئے بس والا انشاءاللہ ہمارے چاراں کھنے والے ہوگا یہ بس اتکا اچھتا تھا یہ بس ہمارا باپ بارے کجام جا گیا یک مسجد ہے ہمارا باپ پورا مسجدہ چی بات کھانے دیا کمرہ ہی کھنے ماں بس چارے سے گندگا ہے درست چاراں کھنے والے ہوگا تک آخر تک ہمارا جائیے بکھنے میں وہ لوگوں چاہ رہے ہیں سبسکرائب فالو بیل لائکن آن کرنا ضرور بیار ہونے والے سلامت باتیں یہ بس پیدا کی یہ بس میں بس ہمارا باپ آ رہے ہیں یا ہم دوری جا گئے یا یک زیارت یا اور جو زیارت کریں گوڑا کہیں پتہ ہے انشاءاللہ عمرہ ہی کرنے یا عمرہ ہی کرنے بارے ہمارا کجا با ہمارا انشاءاللہ پیشداراں کا نام یہ رکھنا سر ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیور چاہ رہا ہوں بارے سخت بولنے ہم بس سوارے میں ہوٹل ایشے ہوٹل نام ہے بس سوارے انشاءاللہ دیں پہ زیارتیں رہو گے بارے ہمارا کجا ہم زیارت ہوا کیونکہ ان کا یہاں پہ بلاوا ہی نہیں ہے آپ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں جو یہاں پہ آئے عمرے کی شہادت سے نوازے گئے اور آج مکہ شریف کی زیارات کے لیے رواں ہیں ابھی ان حدود حرم کے اندر ہیں کچھ جاتے کہ ہم پہلے آئے ہوں گے حج پہ عمرے پہ انہیں پتہ ہوگا کہ حدود حرم کی فضیلت کیا ہے حدود حرم کے اندر ہم جو ایک نیکی کر رہے ہیں اس ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ نیکی کے برابر ایسا نہیں ایک نیکی کریں گے اسی کا ثواب 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے یہاں پہ ہم جو ایک گناہ کر رہے ہیں ایک گناہ جو ہم سے سرزد ہو رہا ہے وہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر کام ہو رہا ہے حدود حرم صرف صحیح تک محدود نہیں ہے کہ کچھ جگہ کا ہم سوچ ہوں گے جو باب عبدالعزیز ہے وہاں تک گیٹ تک حدود حرم محدود ہے ایسا نہیں حدود حرم بہت بڑی ہے یہ جہاں پہ آپ کا ہوٹل ہے جہاں سے ہماری گاڑی نکلی ہے ہماری جتنی بھی زیارات ہیں یہ ساری کی ساری حدود حرم کے اندر ہیں صرف جو ہمارا میدان عرفات ہے محشر کا حشر کا جو میدان ہے حج کا جو میدان ہے صرف وہ حدود حرم سے ہم باہر دیکھیں گے باقی ہم جتنی بھی زیارات کریں گے وہ ساری کی ساری ہماری حدود حرم کے اندر ہیں تو ابھی ہم حدود حرم کے اندر ہیں تھوڑی آواز آنی چاہیے سب اجازت اکرام میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ سبحان اللہ بولتے ہیں سبحان اللہ آواز تھوڑی کم آئی ہے نیکیاں سمیٹنے کے لیے ہیں نیکیاں لے جانے کے لیے ایسا نہ ہو جیسے اپنے ملک سے خالی ہاتھ آئیں اسی طرح کل خالی ہاتھ واپس لوٹ جائیں پھر یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد نہیں یہاں پہ کوشش کریں حدود حرم کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار جاری رکھیں درود ابراہیمی کا بیت اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں یہاں سے مدینہ شریف کے لیے جائیں وہاں پہ بھی مدینہ شریف کے اندر ہم جو ایک نیکی کرتے ہیں اس ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکی کے برابر ہے اور یہاں پہ آپ جو ایک نماز ادا کر رہے ہیں حرم کی کاموں میں بھی ایک نماز ادا کر رہے ہیں کہاں تک یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا منشیا میں بھی آپ کے ہوٹل کے آگے بھی نماز بچھا کے سب بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں ہم ابراہیم خلیل پہ بھی یہ جو آپ نے پل دیکھا پل تک جہاں تک حرم کی قامت کی آواز پہنچ رہی ہے جہاں تک حرم کی قامت کی آواز پہنچ رہی ہے اس ایک نماز کا بھی ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے اپنے ملک میں چلے جائیں گے 1 لاکھ نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں کتنا بڑا پیریڈ چاہیے
और यहाँ पे हम थोड़ा टाइम वक्त में हम यहाँ पे नमाज कज़ा कर दें। कोशिश करें कुछ जो यहाँ पे आपके पास दिन है हरम की कामत के साथ नमाज जो है वो पाबंदी के साथ उसको करें। तो अभी हमारी जो ज़ियारत का सिलसिला है वो रवां है। हमारी जो पहली ज़ियारत है, जिस पहली ज़ियारत को हम देखेंगे वो है जबल सोर पहाड़। कौन सा पहाड़? जबल सोर पहाड़। जबल उर्दू में पहाड़ को कहा गया है। सोर में बैलनुमा एक पहाड़ है जिसके ऊपर जिसके टॉप पर गार है गारे सोर, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने 3 दिन 3 रातें इस गार के अंदर क़याम किया था। कब क़याम किया था? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मक्का शरीफ को छोड़ के यहाँ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने 3 दिन 3 रातें इस गार के अंदर क़याम किया। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से बहुत प्यार, मक्का शरीफ को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो अहले कबाइल थे, अहले कफार थे, नाम मुस्लिम थे, वो बहुत ज्यादा थे, कसरत में थे। जिन्होंने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग देना शुरू किया, इस्लाम की तरफ लोगों को बनाना शुरू किया और इस्लाम की तरफ आयत करना शुरू किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तरह तरह की तकलीफें पहुंचाने लगे। उनके जो बच्चे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाने लगे और माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के मंसूबे बनाने लगे। तो आपने अल्लाह पाक के हुक्म से इस मक्का शरीफ को छोड़ के मदीना शरीफ की तरफ हिजरत का फैसला कर दिया। दोपहर का वक्त था, हजरत सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ ले जाते हैं और हजरत सिद्दीक़ अकबर से कहते हैं तैयार रहना, हमें किसी भी वक्त हिजरत के लिए जाना पड़ सकता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि उस शाम के बाद, उस रात के बाद मेरी आंख नहीं लगाई, मैं सोया नहीं, ऐसा नहीं मेरी आंख लगी हो, मैं सोया हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए पैगाम भेज दें, हिजरत का सफर शुरू कर दें। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का पैगाम भेजा, हिजरत का सफर कहाँ से शुरू किया? कि जहाँ पे आपका होटल है इसके साथ ही एक और सड़क है हिजरा रोड, उसे हिजरत वाला रास्ता कहते हैं। वहाँ पे एक कदीमी सी मस्जिद भी है, मस्जिद हिजरा के नाम से, वो भी एक ज़ियारत का मकाम है। कोशिश कीजिएगा हर बंदा वहाँ पे भी एक नमाज पढ़ ले या उसकी ज़ियारत कर ले। वहाँ से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर शुरू किया, वहाँ से इस पहाड़ तक, जबल सोर पहाड़ तक का जो सफर है ये 3 किलोमीटर का सफर। वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलते हुए इस पहाड़ तक जब पहुंचे तो थक गए। आज तो हमारे पास हर सहूलत यहाँ पे मौजूद है, गाड़ियाँ, हर चीज़ है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, सब पहाड़ ही पहाड़ था। ये जो सड़कें, होटल्स आप देख रहे हैं, सब यहाँ पे पहाड़ी इलाका था, पहाड़ काट काट के यहाँ पे ये सब कुछ बनाया गया। तो वहाँ से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए इस पहाड़ के दामन में पहुंचे तो थक गए और अपने हाथों के बल पकड़ के इस गार के ऊपर चढ़ने लगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर से रहा नहीं गया, देखा नहीं गया, खुद से इशार कर रहे हैं, आका अगर आप पसंद करें तो मेरे कांधे मुबारक पे आ जाए, मैं आपको उठा के इस गार का जो सफर है वो तय करूं। आपने देखा होगा टीवी पे, लाइव टेलीकास्ट में देखा होगा, इस गार की जो हाइट है सतह जमीन से टॉप तक 5413 फुट की बुलंदी। कितनी? 5413 फुट की बुलंदी है। और इसके ऊपर आने जाने में जो टाइम लगता है 4 से 5 घंटे का तवील पैदल रास्ता है। कई सालों से जैसी बात थी आज भी उसी तरह, कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली इसके ऊपर नहीं की गई। कोई गाड़ी का रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ियों का रास्ता नहीं है, जो हाजियों के चलने से जो रास्ता बना है वही रास्ता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे मुबारक पे उठा के, नबूवत का वजन उठा के इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के जब ऊपर पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार के बाहर रोक दिया और खुद गार के अंदर तशरीफ ले गए कि मैं गार के अंदर देखूं कोई चीज़ तो नहीं है, गार की सफाई करूं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा दे। गार की सफाई करें तो यहाँ पे कुछ रवायात में आता है कि इसके अंदर कोई मोज़े जानवर था, कुछ रवायात में आता है कि इसके अंदर एक सांप था जो कई सौ सालों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए इस गार के अंदर था। तो सांप ने इस गार के अंदर कई सुराख बना रखे थे। यहाँ पे पहली हम ज़ियारत करेंगे जबल सोर पहाड़ की, जो बैल की कुरान की तरह इंशाअल्लाह। अभी यहाँ पे कुछ ही मुसाफत के बाद यहाँ पे हम सब रुकेंगे और इस पहाड़ की ज़ियारत करते हैं, फिर यहाँ से आगे जो है मैदान अरफात की तरफ सफ़र करते हैं। यहाँ पे जो नीचे उतर नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो वो यहाँ पे गाड़ी में बैठ के, साथ ही गाड़ी सामने खड़ी होगी, वो साथ से यहाँ पे ज़ियारत कर लेंगे, गाड़ी से होते सब यहाँ पे दुआ भी कर लेंगे और साथ में ज़ियारत भी करना। बाकी जो नीचे चलने वाले साथ ही 2-4 मिनट के लिए नीचे उतरेंगे, इस पहाड़ को देख भी लेंगे, इस पहाड़ की ज़ियारत भी कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे दुआ भी हम सब यहाँ पे साथ कर लेंगे।
दुनिया भर से लोग यहाँ पे इस्लामिक तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे इस जगह पे मक्का शरीफ के अंदर सफ़र करते हैं। मक्का शरीफ की जो बहुत ही पुरानी और कदीम सी ये मस्जिद यूनिवर्सिटी है, साथ में इसकी मसाजिद भी आप देख रहे हैं। उम्मुल कुरान के नाम से साथ में आपको एक मसाजिद भी दिखाई दे रही है। उम्मुल कुरान के नाम से ये यूनिवर्सिटी है और साथ में इसकी आपको मसाजिद दिखाई दे रही है। चार दीवारी के अंदर देखें सारी आपको यूनिवर्सिटी की हदूद आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड के उल्टे हाथ के थोड़ा दूर इतराफ आप देखेंगे, थोड़ा दूर के तरफ देखें अपने उल्टे हाथ की तरफ कुछ आपको येलो कलर के पीले कलर के कुछ साइन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा दूर देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है येलो कलर का, पीले कलर का। थोड़ा हम आगे जाएंगे तो आपको ऐसे बड़े बोर्ड दिखाई देंगे येलो कलर के। यहाँ पे ये जो येलो कलर के बोर्ड लगाए गए पीले कलर के, ये अरफात की जितनी भी हदूद आपको दिखाई देगी, मैदान अरफात की जो भी हदूद है उसके साइड पे आप ऐसे ही पीले कलर के साइन बोर्ड देखेंगे। सारी हदूद आपको बंद दिखाई देगी। 6 किलोमीटर की जो अरफात की हदूद है ये हुकूमत ने सारी रोक दी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या, बदायतुल अरफात, अरफात स्टार्ट्स हियर। एक तरफ लिखा हुआ है दाखिल होने के लिए, दूसरी तरफ निहायतुल अरफात इंग्लिश और अरबिक में अरफात एंड्स हियर। तो एक तरफ हमने दाखिल होने के लिए और दूसरी तरफ निकलने के लिए यहाँ पे जितनी भी अरफात की हदूद है उसको सारे को यहाँ पे हुकूमत ने ऐसे पीले कलर के साइन बोर्ड लगा दिए। ये अभी कुछ ही साल से यहाँ पे ऐसी हदूद बना दी। आप पहले आए होंगे, कुछ जाजे कराम उन्हें देखा होगा, पहले अरफात की हदूद ऐसी नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि पहले यहाँ पे बहुत ही कम लोग यहाँ पे सफर करते थे इस मैदान की तरफ। तो अभी यहाँ पे बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ी रश का सिलसिला बन रहा है। तो यहाँ पे जो मकामी लोग हैं, यहाँ के जो सोहदी लोग हैं, तो वो सिर्फ 9 ज़िलहज का दिन है, हज का जो सबसे इम्पोर्टेंट रुकन है वो अदा करने के लिए इस मैदान की तरफ, मैदान अरफात के देर का। तो यहाँ से हम अरफात के अंदर पहुँचेंगे, मैदान अरफात के अंदर पहुँचने वाले हैं। अरफात में तो सब यहाँ पे सब लिख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे गेट आ गया, आपको ये बड़ा गेट नजर आ रहा है। यहाँ से हम मैदान अरफात के अंदर पहुँच गए। सीधे हाथ उल्टे हाथ यहाँ पे गाड़ी चल रही है, सीधे हाथ उल्टे हाथ जहाँ तक आपकी नजर पहुँच रही है सारा का सारा आपको यहाँ पे देखें ट्रेन का स्टेशन दिया है। यहाँ पे नहीं चलाई जाती। जो गवर्नमेंट के सरकारी हजाजे कराम यहाँ पे आते हैं तो वो एक रास्ता यहाँ पे ट्रेन का बनाया गया है जो यहाँ से अरफात से जा रही है मुजल्फा के अंदर और मुजल्फा से मिना के अंदर। यहाँ पे ये हरम शरीफ से नहीं आ रही, यहीं से अरफात से जा रही है ये मुजल्फा के अंदर और मुजल्फा से मिना के अंदर ये ट्रेन जा रही है। ट्रेन का आपने पुल देखा, सीधे हाथ उल्टे हाथ पे देखें कुछ खेमे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखें खेमों के आपको ऊपर कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आपको खेमों का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आपने उल्टे हाथ पे देखें, सीधे हाथ पे कुछ खेमे दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे हज पे बड़े बड़े ऐसे खेमे लगाए जाते हैं जिसे एक खेमे के अंदर तकरीबन 200-250 लोग एक खेमे के अंदर वकूफ करते हैं और पूरा दिन इस खेमे के अंदर 9 ज़िलहज का जो पूरा दिन है वो यहाँ पे इस खेमे के अंदर गुजारते हैं। यहाँ पे जब 9 ज़िलहज को हजाजे कराम इस मैदान के अंदर आते हैं, 9 ज़िलहज को जब हजाजे कराम इस मैदान के अंदर आते हैं, यहाँ पे रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं तो ऐसे पाक साफ हो जाते हैं गुनाहों से जैसे माँ को अभी बच्चा पैदा हुआ। आज अल्लाह पाक ने आपको भी मौका दिया, यहाँ पे दुआ करें 9 ज़िलहज का दिन हो, सुबह का टाइम हो, लब्बाई की सदाएं हमारी ज़ुबान पे जारी हो और हमारा भी सफर इस मैदान की तरफ हो। सब आमीन बोल दें। क्या पता हमें कौन अल्लाह पाक का ऐसा नेक बंदा बैठा हो जिसके सदके से हम सब का बेड़ा पार हो। तो अभी हम कुछ ही मुसाफत के बाद जबले रहमत पहुंचने वाले रहमत वाला पहाड़ देखिए। यहाँ पे कुछ जाते हैं नीचे से पूछते हैं कि यहाँ पे अरफात के अंदर पहुंचे या नहीं। तो ये जबले रहमत पहाड़ है, ये अरफात के दामन में है, अरफात के सेंटर में है। इसके साइड पे आपको जितनी भी हदूद दिखाई देगी वो सारी की सारी आपको मैदान अरफात दिखाई देगी। जितनी हदूद दिखाई देगी ये सारा मैदान अरफात दिखाई देगा। और दूसरा इस पहाड़ के ऊपर आपको एक पिलर दिखाई देगा, एक यहाँ पे निशानदेही के लिए पिलर लगाया गया। बाबा आदम के दौर से इस पहाड़ के ऊपर ये पिलर नहीं था, अभी सिर्फ ये निशानदेही के लिए लगाया गया है। कोई भी हाजी यहाँ पे आए तो इसके करीब पहुंच सके। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही हमारे सामने जबले रहमत पहाड़ आ रहा है। यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान से सुन लेंगे। एक तो यहाँ पे हमारी जो गाड़ी का नंबर है 8506 8506 8506 स्काई ब्लू सी गाड़ी, अभी तो इतनी रश नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो जाएंगे
वो थोड़ा सा चल के जाएंगे, तकरीबन 5-7 मिनट जाने के लिए लगेंगे, 5-7 मिनट आने के लिए, और टाइम की खास पाबंदी कर लेंगे, 20 से 25 मिनट का टाइम है। आधे घंटे बाद जो आएंगे तो गाड़ी हमारी यहाँ से आगे ज़ियारत के लिए निकल जाएगी। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जो आपको टाइम दिया जाता है उस टाइम पे आप सब ने यहाँ पे आ जाना है। और दूसरे जो लोग बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे चल नहीं सकते, वो कोशिश करें यहीं पे नीचे उतरें, उतर के यहीं पे थोड़ा आगे जाके साथ ही दवा कर लें, दवा करके वापस गाड़ी के अंदर आ जाएंगे। जो चल नहीं सकते, जो बूढ़े कमजोर हाजी हैं उनके लिए। और की जो सुन्नत तरीका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दामन में खड़े होकर दवा फरमाई थी, इसके ऊपर सफर नहीं किया था। जो सुन्नत तरीका है, इस पहाड़ के ऊपर कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप जो देखेंगे दूसरा यहाँ पे कोई नवाफिल वगैरह कोई चीज आपने अदा नहीं करनी है, क्योंकि नवाफिल के लिए किबला रुख का पता होना, उस जगह का पाक होना ये जरूरी है। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पता आपको कि किबला रुख किस साइड पे है, मुझे भी खास नहीं पता कि किबला रुख किस साइड पे, इसलिए यहाँ पे अपने नवाफिल वगैरह कोई चीज अदा नहीं करनी। सिर्फ इस पहाड़ की आप सब जियारत करेंगे, जियारत करके आप इस पहाड़ की सब वापस यहीं पे गाड़ी के अंदर आ जाएंगे। एक ही रास्ता यहाँ से सीधा जाएगा, उधर उधर नहीं जाएंगे, अपने बंदों को साथ लेके जाएंगे और साथ लेके यहाँ पे सब वापस इसी जगह के अंदर पहुँच जाएंगे। गाड़ी जिस जगह पे खड़ी रहेगी। सलाम पटी चाले वर्ष बराबर पटी अमी जा गए इधर अरकस अज्जनीयत का अकबर तो इधर आएगी यार चौड़ा इधर ब्याह एक हुआ ज़ियारत का, एक हुआ नाम है अल रहमा माउंटेन, ये यासर अरपा तोका दायरा अरकस अज्जनीयत का गोटे अकबर इधर ब्याह ज़ियारत पे हुआ एक हुआ ज़ियारत खने गोटे नुत्ती आज भी आगा तो एक हुआ ज़ियारत नखने उड़ती आज चौड़ा नबी अमा आज ही मर्दम गोड़ा अकबर एक हुआ पी हुआ आई की वो बेचारे पुरुष बढ़िया कुएं देखे यहाँ कुएं ऐसा माशाल्लाह दोस्तों ज़ियारत को तो पैदा कम हमारा दे में कुएं दुरुस्त पैदा कर ज़ियारत करने का ये हमें कुएं आज ही मर्द मामा के अज्जा का आया एक कुआ आर चौड़ा आया आएगी एक कुआ न्याय उड़ती आज नबी एक कुआ ब्याह ज़ियारत पे काम पता कोड़ा बोरो आज पे काम ये हमें कुएं बेचारते माशाल्लाह से बोरदा ज़ियारत हो गए आर्च बुड्ढा या के अंच मर्दमा लंगा अच्छा तो नखना बुर्जा बुर जल्लाची ज़ियारत पे करना ची इधरों ज़ियारत करना जल्लाची शी माशाल्लाह पार्टी जगह शमर में पेज दास और चारा खने देमा इंशाल्लाह शमर देमा ज़ियारत भी पेज दार हैं खने इंशाल्लाह समय चारे शमर देमा हर ज़ियारत कहते हैं हर चीज़ भी मशवरा पेज दार खने आए बारे शमर कुछ खने दोस्त दोस्त आगे तक बेचारे वालों का मशवरा होने बारे आइसक्रीम वरने आइसक्रीम 5 रियाल 3 रियाल 3 रियाल 5 रियाल यस ओके 5 रियाल 5 रियाल है या आइसक्रीम में 5 रियाल चीज़ पाकिस्तानी भी हम ऐसे दबसत कर दर भी अच्छा है पाकिस्तानी हो बांग्लादेशी हो सिंधी हो वाह यार सिंधी बलूच भाई भाई बात आएंगे मैदान मुजफ्फर के अंदर और एक रात पूरी जो रातों में आसमान तले जो है मैदान मुजफ्फर के अंदर गुजारेंगे। यहाँ पे मस्जिद निमरा को देखेंगे, पूरी मस्जिद आपको फिर से दिखाई देगी, अपने उल्टे आके देखें पूरी मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, 6 मीनार और 3 गुंबद वाली आपको मस्जिद दिखाई दे रही है। मस्जिद निमरा आज की मस्जिद है, यहाँ पे अल्लाह पाक से दुआ है इंशाल्लाह हम यहाँ पे जरूर आएंगे, इस मस्जिद के अंदर जरूर नमाज अदा करेंगे। ये आपके उल्टे आके आपको मस्जिद निमरा दिखाई दे रही है। और यहाँ पे थोड़ी सी मुसाफिर के बाद यहाँ पे जो रास्ते बनाए गए हज के, यहाँ पे 18 रास्ते हज के बनाए गए, जिनमें 14 रास्ते ऐसी गाड़ियों के, 3 रास्ते के अंदर और मेरे से मुजफ्फर के अंदर और मुजफ्फर
से यहाँ पे अरफात के अंदर आई। ये पैदल हज करने वालों के रास्ते हैं, पैदल हज करना सुन्नत भी है। पार्टी और पैदल सवाब हज भी वाला वो रास्ते कहता है कि कदम पे हमारा है कि हज जगह पैदल रहा अल्लाह पाक से दुआ ये है हमें रहा है कि हम भी यहाँ पे शौचालय। आएंगे और इन पैदल रास्तों पे चल के हज की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये 18 एक रास्ता भी हम ट्रेन का देखेंगे, 14 रास्ते बड़ी ये ऐसी बसों की होगी, छोटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाती है, यहाँ पे सिर्फ ऐसी बड़ी बसें चलाई जाती है। 14 रास्ते उसके हो गए, 3 रास्ते अभी हमने पैदल हज करने वालों को देखे और एक रास्ता हम ट्रेन का देखेंगे। टोटल यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल आपको एक पहाड़ी के देखें नीचे आपको एक पुरानी सी पत्थरों की दीवार दिखाई दे रही है। देखिए हमारी गाड़ी के बिल्कुल साथ आ गई, ये पीले कलर की आपको एक दीवार दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे पहाड़ी के दामन में, ये देखिए हमारी गाड़ी के साथ आ गई। पुराने से पत्थरों की आपको एक दीवार दिखाई दे रही है, उस दीवार के पीछे नाली नुमा नहर बनाई गई, जुबैदा ने इराक के शहर से तामीर कर डाली, यहाँ तक तामीर कर डाली, 1400-1500 किलोमीटर तक यहाँ पे ये तामीर कर डाली। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम भी यहाँ पे ऐसा कोई नेक अमल कर जाएं कि हम भी अपने जाने के बाद याद किए जाएं, जैसे बीबी जुबैदा को आज भी याद किया जाता है। बीबी जुबैदा ही बनाए थे यहाँ पे जगह। 1400-1500 किलोमीटर पे कैसे पानी लाया गया हुआ, अल्लाह पाक की मदद से मोज़तन इसके अंदर पानी चलाया जाए। आज हम किलोमीटर 2 किलोमीटर पे पानी लेके जा रहे हैं, मोटर मशीनरी का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे ये 1400-1500 किलोमीटर तक इस नहर के अंदर पानी चलाया गया। अल्लाह पाक के हुक्म से इसके अंदर पानी चलता रहा, 1920 तक इस नहर के अंदर पानी चलता रहा। उसके बाद समुंदर से पानी फिल्टर करके साफ करके यहाँ पे लाया गया, तो इस नहर की सफाई सुथराई छोड़ दी गई और ये नहर बंद हो गई। इसके देखिए नीचे कुछ होल भी आपने देखे होंगे, ये पानी की निकासी के लिए जो ओवरफ्लो का पानी आ रहा था तो वो यहाँ से इसके नीचे से निकल रहा था। उल्टे आपको देखिए ट्रेन का आपको पुल दिखाई दे रहा है, एक रास्ता मैंने आपको ट्रेन का बताया था, जो गवर्नमेंट के सरकारी मुजाहिद इकराम यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक रास्ता आपको ये ट्रेन का दिखाई दे रहा है, ये ट्रेन का आपको पुल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो है सफर करते हैं। बिजली पे ये ट्रेन चलाई गई है और बिना ड्राइवर के चलाई जाती है। हरम शरीफ से नहीं आ रही, मैंने पहले भी बताया था, ये अरफात से होती हुई आ रही है, यहाँ पे मुजल्फा के अंदर और मुजल्फा से मीना के अंदर। जो मदीना शरीफ वाली ट्रेन है वो अलग ट्रेन है, ये सिर्फ हज वाली ट्रेन है, सिर्फ हज पे यहाँ पे मुजाहिद इकराम इस ट्रेन के ऊपर यहाँ पे सफर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके उल्टे आपके यहाँ पे ट्रेन का स्टेशन आ गया, यहाँ पे मैदान मुजल्फा के अंदर पहुंचने वाले हैं। ये उल्टे आपके ट्रेन का स्टेशन आ गया, यहाँ पे स्टेशन नंबर 1 और सीधे आपके यहाँ पे ये बदायतुल मुजल्फा, ये आपके बिल्कुल सड़क के साथ बदायतुल मुजल्फा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से हम मैदान मुजल्फा के अंदर पहुँच गए। सीधे आप उल्टे आपके देखें जहाँ तक नजर पहुँच रही है सारा का सारा आपको मैदान मुजल्फा का मैदान दिखाई दे रहा है। ये सीधे आपको देखें मैदान दिखाई दे रहा है, सोल्ट टाइम में एक आपको मैदान दिखाई दे रहा है, ये मैदान मुजल्फा का मैदान है। यहाँ पे जाजे इकराम खुले आसमान तले एक रात इस मैदान के अंदर गुजारते हैं। जैसा आज मैदान है, हज पे भी ये मैदान इसी तरह, इसके अंदर कोई चेंजिंग कोई तब्दीली यहाँ पे नहीं की जाती। जैसा आज मैदान है, हज पे भी इसी तरह का मैदान है। इस पे यहाँ पे खुले आसमान तले पत्थरों के ऊपर जाजे इकराम एक रात यहाँ पे गुजारते हैं। यहाँ पे जो चीज़ अरफात से लेके आएंगे वही चीज़ यहाँ पे बिछाएंगे, वही चीज़ खाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस रात एक रात को 9 ज़िलहज की जो रात है वो यहाँ पे गुजारेंगे। तो देखिए कुछ वाइट कलर की आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, तो ये वाशरूम टॉयलेट हमामात वगैरह बनाई गई हैं। बाकी इस मैदान के अंदर कोई चीज़ नहीं दी गई। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखिए मस्जिद आ रही है, आप किसी भी आपको 2 मीनार वाली आपको मस्जिद दिखाई दे रही है। ये दुनिया की जो दूसरी मस्जिद है जो पूरा साल बंद रहती है, मस्जिद मशरुल हराम बाबा मुजल्फा, 12 नंबर दूसरे के अंदर इसका जिक्र भी मौजूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस मस्जिद की करीब क्या है, देखिए दुनिया की वो दूसरी मस्जिद है जो पूरा साल बंद रहती है। पहली मस्जिद निमरा जो हमने अरफात में देखी, और ये दूसरी मस्जिद कौन सी है, मस्जिद मशरुल हराम बाबा मुजल्फा, 12 नंबर दूसरे के अंदर इसका जिक्र भी मौजूद है। यहाँ पे मस्जिद जिन का और मस्जिद मशरुल हराम, ये 2 मसाजिद का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। तो यहाँ पे जब जाजे इकराम एक रात इस मैदान के अंदर गुजारेंगे तो यहाँ से अपने साथ कुछ ले लेंगे। क्या चीज़ ले लेंगे जो रात यहाँ पे गुजारेंगे? यहाँ से शैतानों को मारने के लिए जो पत्थर है, कंकर है, वो यहाँ से उठा रहे हैं। ये सड़क के साथ देखिए दोनों तरफ कुछ आपको क्रश दिखाई दे रही है, बजरी दिखाई दे रही है, जो हम लेंटर के माल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए पेन पड़ी हुई है दोनों तरफ। तो यहाँ से चुन लेंगे कितनी पार्टी हमें सिंगल के शैतान जन्नत पे हो, अपने पास किसी बोतल में किसी शापर में उठा लेंगे और मीना के अंदर 3 बड़े शैतान है।
फजीलत के बड़े शैतान को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके 7 कंकर में रमी किए जाते हैं। उसके बाद कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी के बाद एहराम खोला जाता है, फिर 11 जिलहज को तीनों शैतानों को 7 7 7 21 कंकर, और फिर से 12 जिलहज को तीनों शैतानों को 7 7 7 21 कंकर। टोटल ये कितनी होगी? 49, 50 कंकर, 50 से कम। ज्यादा यहाँ से इसलिए ले लेंगे कि अगर कोई दोस्त का भूल गया हो या अपने पास से गिर जाए तो यहाँ से ज्यादा रखने की इजाजत है, और यहाँ से ज्यादा उठाने की इजाजत है, और यहाँ से उठाना सुन्नत है, क्योंकि बिना के अंदर भी कंकर मौजूद है, लेकिन वो पहले से रमी है, पहले से मार चुके हैं, वो वहाँ से नहीं उठाए जाते, इसलिए यहाँ से उठाए जाते हैं। कहाँ से? यहाँ पे मीना के मुजल्फा के अंदर से यहाँ पे कंकर जो है वो यहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम मीना के अंदर पहुँचने वाले हैं, वादी मीना, शहर मीना के अंदर पहुँचने वाले हैं, जिसे हाजियों का शहर कहा जाता है, जिसे हाजी लोग आबाद करते हैं। बड़ी प्यारी आपको एक वादी ये दिखाई देगी, वादी मीना, शहर मीना, जिसे हाजियों का शहर कहा जाता है। दुनिया के किसी खिते में, दुनिया के किसी शहर में आप चले जाएं, जैसे वादी मीना की वादी आपको दिखाई देगी, एक ही तरह के एक ही तर्ज के आपको खेमे दिखाई देंगे, छोटे कनोपी वाले। यहाँ पे फाइबर क्लास के ये खेमे बनाए गए हैं, ना इनको आग लगती है और ना इनके अंदर पानी जाता है। एयर कंडीशनर AC वाले आपको खेमे दिखाई देंगे। यहाँ पे पहले जो खेमे आपको थोड़ी सी मुसाफत के बाद दिखाई देंगे, कुछ मुसाफत के बाद आप पहले जो ये खेमे देखेंगे तो ये यहाँ पे मुजल्फा के अंदर लगाए गए। अभी मीना के अंदर नहीं पहुँचे क्योंकि मीना के अंदर जगह खत्म थी, तो ये जो खेमे मीना के हैं लेकिन लगाए मुजल्फा के अंदर। ये देखिए आते आगे आपके खेमे यहाँ पे ये मुजल्फा की हदूद के अंदर खेमे लगाए गए हैं, एक ही तरह के कनोपी वाले आपको खेमे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मीना से पहले हमारी एक ज़ियारत है, कौन सी ज़ियारत है? अजाब वाली जगह, वादी मुअस्सर, अजाब वाली जगह। अबरा एक जालिम हुक्मरान था, यमन का बादशाह था, अपने इलाके को लोग गुलाम बना रखे थे, अपनी इबादत करवाया था। मक्का के मुसलमान लोगों ने चला उसके महल में चले गए, तोड़ फोड़ कर दिया। जब वो महल में आए तो मालूम किया, तो पता चला मक्का से मुसलमान लोग आए थे, लौट के वापस मक्का चले गए, तो उसने वहां से हाथियों का एक बड़ा लश्कर ले लिया, माज़अल्लाह किस नीयत से? खाना काबा को गिराने के लिए, खाना काबा को ढहाने के लिए। जब वादी मुअस्सर के मुकाम पर पहुंचा तो अल्लाह पाक ने उसके ऊपर अजाब नाज़िल कर दिया। अजाब कैसे नाज़िल किया? अब अभी परिंदे थे, उनके मुंह में और पंजों में छोटे छोटे कंकर थे, कैरे लाई ऐसा बरसा कि वो नस्तो नाबूद हो गया, खत्म हो गया। सूरतुल फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, और हमने हाथी वालों पे कैसा अजाब नाज़िल किया। सूरतुल फील के अंदर इसका पूरा वाक़ा वजूद है, आपने पढ़ा होगा। सूरतुल फील के अंदर इसका वाक़ा वजूद है। यहाँ पे अल्लाह पाक का अजाब नाज़िल हुआ, वहाँ पे अस्तगफिरुल्लाह करेंगे, हर बंदा बोलना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह। और यहाँ पे हम इबरत की निगाह से देखेंगे, ज़ारत की निगाह से नहीं देखेंगे। अल्लाह पाक ने खाना काबा का ज़िम्मा अपने पास रखा, तो यहाँ पे जब हाथी वालों का लश्कर पहुंचा तो अल्लाह पाक ने उसके ऊपर अजाब नाज़िल कर दिया था। ये मीना का आपको स्टेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मीना का स्टेशन खत्म होगा तो सीधे आके देखेंगे, आपको पार्किंग में भी छोटी सी जगह खाली दिखाई देगी, कुछ आपको मट्टी रेत पड़ी हुई दिखाई देगी, छोटे से हिस्से में मट्टी आपको दिखाई देगी। ये देखें, ये स्टेशन यहाँ पे खत्म हो गया, ये देखें बीच में आपको कुछ मट्टी दिखाई दे रही है, रेत से मट्टी दिखाई दे रही है। ये देखें सीधे आपको ये मट्टी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमारे कबीरा और सगीरा गुनाह माफ करें। ये हमने इबरत की निगाह से देखा, ज़ारत की निगाह से नहीं, ज़ारत का मकाम ये नहीं है। अभी हम मीना के अंदर पहुंचे, यहाँ से आगे हम बाद ये मीना, शहर मीना के अंदर पहुंच गए। यहाँ पे मीना की बड़ी मुकद्दस ज़ियारत आ रही है, मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम, मकाम ज़बी अलैहिस्सलाम, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे, अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, अल्लाह की राह में ज़बह करने के लिए यहाँ पे आके लटाया, और जन्नत से यहाँ पे दुम्बा आ गया और उस दुम्बे की कुर्बानी हो गई। जो हम बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी करते हैं, तो मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को यहाँ पे रमी करते हैं। सब यहाँ पे प्यारो मुहब्बत के साथ देखेंगे। आप यहाँ पे आपके उल्टे हाथ पे, सब उल्टे हाथ पे थोड़ा ध्यान कर लेंगे, अपने उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे, सब मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे। यहाँ पे देखें छोटी सी बिल्डिंग के बीच में छोटी सी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा आपको गुंबद, छोटा सा एक मीनार दिखाई देगा। पहाड़ी के ऊपर देखें छोटा सा गुंबद है, बुर्ज मीनार छोटा सा, वो देखिए पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मीनार है, जिसके ऊपर एक छोटा सा सुराख है। बाहर पहाड़ी के ऊपर देखेंगे सामने जी बिल्डिंग के बीच में देखिए छोटा सा एक मीनार है, छोटा सा एक गुंबद है, जिसके ऊपर एक छोटा सा सुराख है। सामने देखिए पहाड़ी के ऊपर आपको एक मीनार दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का एक गुंबद लगा हुआ है, छोटा सा गुंबद है, उसके ऊपर एक छोटा सा सुराख आपको दिखाई दे रहा है। छोटा सा गुंबद है, उसके ऊपर एक छोटा सा सुराख। ये छोटा सा जो आपने गुंबद देखा, ये मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम वाली जगह है। आप वहाँ से उठ के देखते हैं, बाद में चली पड़ेगा। ये मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम वाली जगह है, जहाँ से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ।
सबको पीछे वाले जाजे गए को भी नजर आ गया आखिर में जाते हैं सभी देख रहे हैं मैंने पानी छोड़ेंगे माशाल्लाह। हाँ अच्छा आगे जाएंगे ऐसे देखेंगे उस साइड आपको पीछे दिखाई देगा ये बिल्डिंग के आगे जाएंगे इधर बड़ी हम जागे कि इधर चार सामने देखो कुछ नहीं देखो कुछ नहीं यहाँ पे थोड़ा सा सुनेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को ख्वाब देखे कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए लेके जाना। बेटा उधर में बता मैंने नहीं कि उसमें बता रहे कि अल्लाह की राह में कुर्बान करना। बेटा साथ चल पड़े लेकिन बेटे को चल पड़े इससे कैसे आके लेटा दिया अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध कि जब मैं कुर्बानी करूँगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। आंखों के ऊपर पट्टी बांधी को पीछे देखते वो सामने कौन से बीच में देखते छोटा यहाँ पे अपनी आंखों की ऊपर पट्टी बांध ली कि जब मैं कुर्बानी करूंगा मैं देख नहीं पाऊंगा। गले के ऊपर छुरी रखते छुरी चला रहे हुक्म नहीं छुरी नहीं चल रही एक दफा चला रहे नहीं चल रही दूसरी दफा चला रहे नहीं चल रही तीसरी दफा आवाज दे रहा कि कह रहे तुझे अल्लाह का हुक्म है तू चल जा। इतनी देर में छुरी चल गई जो जन्नत से दुंदा था वो नाजुल हो गया उस दुंदे की कुर्बानी हो गई। अपनी आंखों से पट्टी खोल रहे पास देख रहे बेटा खड़ा अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। यहाँ से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ तो माशाल्लाह मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबने ज़ियारत की होगी। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबने देखा होगा कहाँ पे मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा के साथ सुनहरी जालियों में 2 कदम के निशान सबने देखे होंगे वो मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लेकिन पता नहीं होगा कि वो 2 कदम के निशान क्यों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कर रहे खाना काबा की तामीर कर रहे हाइट बहुत ज़्यादा ऊंचाई बहुत ज़्यादा तब तक दीवारें ढूंढ गई कोई चीज़ नहीं थी तामीर करने के लिए उस दौर में तो अल्लाह पाक से दुआ की कि कोई मिल जाती है। ये पत्थरों पे जिस जगह पे खड़े थे अल्लाह पाक ने वही पत्थर अदा मिला। जो आप 2 कदम के निशान देख रहे हैं वो मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और ये मकाम इस्माईल अलैहिस्सलाम की आपने ज़ियारत की। अभी मीना के अंदर ये सीधे आके देखें कुछ शीशे वाले भी आपको खेमे दिखाई दे रहे हैं। ये मिरर वाले शीशे वाले ये यहाँ पे अभी कुछ साल से यहाँ पे मुख्तस किए गए हैं। आपके सीधे आप शीशे वाले खेमे आ रहे हैं तो ये हुकूमत ने अभी मुख्तस किए हैं। यहाँ पे कोरोना के बाद अभी ये खेमे यहाँ पे हुकूमत ने लगाए। पहले एक ही तरह के एक ही तर्ज के आपको खेमे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अभी कुछ बिल्डिंग वाले भी खेमे यहाँ पे लगाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे दुनिया की तीसरी और आखिरी मस्जिद है मस्जिद खार 70 अंबिया किराम की कबूर मुबारक है। इसके सामने सब सलाम पेश करेंगे। यहाँ पे आपने उल्टे हाथ पे देखेंगे ये बिल्डिंग के देखिए 4 मीनार वाली मस्जिद शोर 4 मीनार वाली मस्जिद देखिए मस्जिद खार 4 मीनार वाली मस्जिद अपने उल्टे हाथ पे देखें 4 मीनार वाली मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद खार 70 अंबिया किराम की कबूर मुबारक है। इसके सामने और पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा की मस्जिद खार। तो साथ ही इसी साल जुमरात वाली जगह भी देख लें 3 पुल गुजर रहे देखें 3 पुल उनके बीच में देखें 6 जगह काली अंधेरी वाली है उसके ऊपर एक टेंट लगे हुए टेंट लगा हुआ सामने देखें सबको दिखाई दे रहा 3 पुल गुजर रहे उनके बीच में 6 जगह काली अंधेरी वाली है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का टेंट लगा हुआ है व्हाइट कलर का खेमा लगा हुआ है जो रस्सियों से बांधा हुआ है। पुल के देखिए अंधेरी वाली जगह के ऊपर एक टेंट लगा हुआ है जो रस्सियों से खेमा बांधा हुआ है। ये जमरात है। जमरात कैसे इसके अंदर एक सुरमई रंग की दीवार है जो 3 फ्लोर के बिना जिसे हाजियों का शहर कहा जाता है जिसे हाजी लोग आबाद करते हैं। बड़ी प्यारी आपको एक वादी दिखाई दे रही है। ऐसी वादी आपने भी कभी नहीं देखी होगी टीवी पे तो आपने देखी होगी लाइव टेलीकास्ट में लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखिए कैसी आपको वादी दिखाई दे रही है। अल्लाह पाक से दुआ करें इस साल नहीं है अगले साल इन खेमों को आबाद कर सकें हज पे इन खेमों को यहाँ पे आके आबाद कर सकें। ये आपको वादी मीना शहर मीना का मंजर दिखाई दे रहा है। बड़ी प्यारी आपको एक वादी दिखाई दे रही है। बड़ा प्यारा एक आपको शहर दिखाई दे रहा है वादी मीना शहर मीना। अभी हम मीना की ये टर्मिनल के अंदर है नफर के अंदर यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो आप सीधे हाथ पे देखेंगे वादी मीना शहर मीना। अभी यहाँ पे अभी हमने कुछ आज के मनाजर देखे जिनमें हमने अरफात मीना और मुजफ्फर के अंदर सफर किया। अभी हमारी गाड़ी मस्जिद जुराना निकात की तरफ जा रही है। मस्जिद जुराना जो निकात है ये बड़ी निकात है। आप बड़े उम्र की सहादत हासिल करेंगे। बड़ी उम्र से बना दिया है कि जंगे हुनैन के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा किराम के साथ मिलकर मस्जिद जुराना से एहराम बांधा और बड़ी उम्र की सहादत हासिल की। यहाँ पे जो ताइफ की निकात है वो भी मक्का है। कुछ जादे ने मुझसे पूछा भी है खाली से कुछ तबरक़ात मक्का है मक्का शरीफ की यहाँ से आप अपने मुल्क में तो कुछ ना कुछ लाजमन खरीद के लेके जाएंगे। ये खालिस सी चीज़ें अपने लिए भी लें अपने अज़ीज़ों कारब के लिए भी लेके जितना मुनासिब शादी है और यहाँ पे मक्का शरीफ की खालिस चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जिसमें मेरे पास से जो है अजवा खजूर की गुठली का पेस्ट है। अजवा खजूर में अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी है। खालिस अजवा खजूर की गुठली का पेस्ट है जो शुगर के मरीज हैं ब्लड प्रेशर के मरीज हैं दिल के मरीज हैं 3 सालों से मेडिसिन दवाइयाँ इस्तेमाल करें फर्क नहीं पड़ा तो अजवा खजूर की गुठली का पेस्ट
सुबह निहार में कुछ खाए पिए बगैर दूध में, चाय में या पानी के साथ 21 रोज इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको शफा देंगे। उसके साथ मेरे पास अलस्म सुरमा है, सुरमे हम आम सुरमा को इस्तेमाल करते हैं, ये खालिस अलस्म सुरमा है जो जमजम के पानी से और अरके गुलाब से प्यास हुआ। जिनको कोई भी नजर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे नजर में प्रॉब्लम है, आंखें ఈ పార్టీ వస్తే మస్జిద్ జోరానా ఇదాచి ఎరామా బందే పద నియత్ కనే ఉతి ఉమ్రే వాస్తా ఇదాచి బస్ ఉస్తతగా ఇదాచి రే వాష్రూమ్ ఉతి ఎరామా బందే పద రమ ఉమ్రే వాస్తా ఇంతగాయే మతే ఎరామ్ బూనే సలాం ఎరామ్ బూనే దరమ ఎరామా బందా ఉతి పద రమ ఇన్షాల్లా عمره واسطه دومی عمره یک عمره کوتا دومی عمره واسطه اداچ مردم نیت کنه عمره اور احترام بندا احترام عمره واسطه اوکے پارٹی شما چاره ماشاءالله اج سسٹم اج طریقہ درست مدستان نمرای مسجد برباد درست مدستان اج طریقہ اج راہ اور سلامت باتیں پٹی اج جگہ واشگل شخصن باتوں وہ لوگوں نے ختم کرنے ادھر بیچارے ماشاءاللہ یہ واش روم میں اور یہ جا گئے یہ مسجد ہے جورانا اوپر رکھ دے پھر بنا سلامت بات ہے